Friends, good morning. This is Justin sir. Today we are going to continue with our chapter number 2 of SS from trade to territory. Today we are going to see the topic of chapter number 2, Tipu Sultan, the Tiger of Mysore. In previous part we saw that the British company expands their rule, and to expand their rule they adopted many strategies like surrender of residence, different policies like subsidiary alliance system, annexation policy, etc. मतलब लास्ट पार्ट में हमने देखा कि ब्रिटिश कंपनी जो है वो अपना रूल, अपना शासन बढ़ाने के लिए कई पॉलिसीज़, कई स्ट्रेटजीज एडॉप्ट करती है, जिसमें है सरेंडर ऑफ रेसिडेंस, दूसरी पॉलिसीज है जैसे कि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम और एनेक्सेशन पॉलिसी. सो आवर टुडेज टॉपिक इज टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर. सो द कंपनी रिस्टोर्ड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन when it saw the threat to its political or economic interest. This can be illustrated with the case of southern Indian state of Mysore. मतलब यहाँ क्या है कि जहाँ जहाँ कंपनी, मतलब कौन सी कंपनी, जियो, टाटा, एयरटेल कंपनी नहीं, कंपनी मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जहाँ जहाँ उनको उसकी राजकीय और आर्थिक, मतलब पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल फ़ायदे की जहाँ भी बात आती थी वो वहाँ अपने मिलिट्री लगा देती थी और कन्फ्रंटेशन मतलब वो उनके साथ बैटल कर देती मतलब उनके साथ युद्ध की घोषणा कर देती है. मतलब कन्फ्रंटेशन मतलब उनके साथ दो हाथ करते, लड़ाई कर देते थे, जिसके एग्जांपल हमने आगे देखे हैं, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर. अब मैसूर हैड ग्रोन in strength under the leadership of powerful rulers like Hyder Ali, ruled from 1761 to 1782, and his famous son Tipu Sultan, ruled from 1782 to 1799. Mysore, which become a strong state under the leadership of Hyder Ali and his own son Tipu Sultan. Hyder Ali ruled as a king in Mysore from 1761 to 1782, and his son, famous son, why we say famous, because he become a famous of Tiger of Mysore, and he ruled in Mysore from 1782 to 1799 after the death of his father Hyder Ali. अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो मैसूर है वो बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही मजबूत राज्य बना, क्योंकि उनको हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे दो पावरफुल रूलर मिले, मतलब महान राज सम्राट मिले, और उनकी लीडरशिप में मैसूर राज्य जो है उन्होंने बहुत तरक्की की, बहुत फ़ायदा किया और बहुत नाम कमाया. नाउ वेयर इज मैसूर? मैसूर मीन्स इन प्रेजेंट वी से कर्नाटका. The whole Karnataka was known as Mysore in ancient time during the time of British East India Company, and Mysore was located at the Malabar coast. Malabar coast means the Karnataka sea coast, the southern sea coast. It is called Malabar coast. And from where? So Mysore controlled the profitable trade of the Malabar coast, where the company purchased pepper and cardamom. In 1785, Tipu Sultan stopped the export of sandalwood, pepper and cardamom through the ports of his kingdom. So Mysore controlled the profitable trade. मतलब Mysore gets a lots of profit from the trade of Malabar coast, from where many European companies, colonies, or many Europeans came there to purchase pepper and cardamom, and with that they got a much profit during the time of Hyder Ali. But after the death of Tipu Sultan, Hyder Ali,
When Tipu Sultan come on throne, he stopped the export of sandalwood, paper and cardamom through the ports of his kingdom। मतलब क्या है कि जब हैदर अली जब वहाँ शासन करता था, हैदर अली का जब शासन मतलब टीपू सुल्तान के पापा जी का जब वहाँ पे शासन था, उनके फादर का जब वहाँ शासन था, तब मलाबार कोस्ट है वहाँ पे कई सारी यूरोपियन कंपनीज आती थी, जैसे कि डच है, फ्रेंच है और पोर्टुगीज़ है, कई सारे लोग आते थे और वो यहाँ पे आके क्या करते थे, व्यापार करते थे। परचेस मतलब यहाँ से खरीद, गरम जो हम मसाले बोलते हैं, स्पाइसेस, पीपर है, कार्डमम, उस वो यहाँ से खरीद के ले जाते थे और उनसे उनको प्रॉफिट होता था, मैसूर को प्रॉफिट होता था। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हैदर अली थे तब वहाँ पे उनके साथ उनके फ्रेंड थे ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि उनकी मित्रता हैदर अली के साथ अच्छी थी। अब जब टीपू सुल्तान आते हैं तब भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वहाँ पे थी। तो क्या होता है कि यहाँ हमने देखा कि इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डमम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम। अब ऐसा क्यों हुआ, जैसे कि हम अब ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ कि जब टीपू सुल्तान यहाँ पे आते हैं, अब टीपू सुल्तान जब राज्य किया तब उनकी दोस्ती फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके साथ अच्छी थी। अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वो कई अपने दोस्त ने, लेकिन उनके साथ दोस्ती इतनी अच्छी क्यों थी, तो इनके साथ दोस्ती इसलिए अच्छी थी कि जब भी पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैसूर वॉर हुआ तभी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर में टीपू सुल्तान या हैदर अली का साथ दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने लड़ाई में। तो इसी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने लड़ने के उनको क्या के सहाय की, मदद की, इस वजह से उनका रिलेशन जो है टीपू सुल्तान के साथ अच्छा था। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन दोनों के बीच में मित्रता अच्छी नहीं थी। अब मित्रता अच्छी नहीं थी मतलब दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते थे, उनके बीच में भी कई सारे बैटल हुए। अब ये दोनों दुश्मन थे तो एक कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। तो वैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की दुश्मन थी, यहाँ पे मैसूर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दुश्मन था। अब दोनों दुश्मन साथ में मिलके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ से भगाना चाहते थे। तो इसीलिए जो वहाँ का जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने टीपू सुल्तान को क्या कहा कि भाई ये ब्रिटिशर्स जो है वो बहुत लालची है, वो उनको यहाँ पे व्यापार करने देना नहीं है। अगर वो यहाँ व्यापार करेंगे तो धीरे धीरे हमारी टेरिटरी में घुस जाएंगे, तो उनके साथ कोई भावताल भी नहीं करना है और उनके साथ कोई व्यापार भी करना नहीं। सो दैट्स वाई टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डमम थ्रू हिट एक्सपोर्ट एंड डिसअलाउ लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। अब डिसअलाउड मीन्स इस मतलब उसके यहाँ वहाँ जो भी बड़े व्यापारी थे उनको डिसअलाउ किया कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कोई भी प्रकार का व्यवहार करे नहीं। He also established a close relationship with French in India and modernized his army with their help। जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बहुत ही अच्छी क्या की, दोस्ती कर दी और अपनी जो टीपू सुल्तान की जो आर्मी थी उसके साथ भी उन्होंने अच्छे संबंध बना लिए और अपनी आर्मी को मजबूत बनाया। द ब्रिटिश वर फ्यूरियस, they saw the Hyder and Tipu Sultan as ambitious, arrogant and dangerous rulers who had to be controlled and crushed। अब यहाँ पे क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ब्रिटिशर्स जो है वो डरने लगे। उन्होंने देखा कि हैदर और टीपू सुल्तान दोनों ही बहुत ही खतरनाक अब सही में है, अपनी टेरिटरी है तो अपनी टेरिटरी अपना राज्य बचाने के लिए कोई भी ताकतवर होता है, ठीक है। तो वैसे ही उन्होंने देखा कि उनको फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ भी मिला है और उनको हराना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो बहुत ही डेंजर है, एरोगेंट है और एम्बिशियस है। सो उन्होंने मन में ठान ली थी कि अगर हमको मैसूर को कंट्रोल में लाना है तो हमें टीपू सुल्तान और हैदर अली को क्या करना पड़ेगा, हराना पड़ेगा। सो देयर वर 4 मैसूर वॉर, 4 एंग्लो मैसूर वॉर।
First was in 1767 to 69, in which Hyder Ali won the battle. Second Anglo-Mysore War was in 1780 to 84, in which they lost some parts of Mysore, and during that war, Hyder Ali was passed away because of cancer. So the half battle was fought by Tipu Sultan. In 1790 to 92, the third Anglo-Mysore War, which was also fought by Tipu Sultan and British East India Company, in which he lost some of his province. Tipu Sultan lost some of his province, and because of that, what he has to do? See the image here. So the company forces were defeated by Hyder Ali and Tipu Sultan in several battles, but in 1792, attacked by the combined force of Marathas, the Nizam of Hyderabad and the company, Tipu Sultan was forced to sign a treaty with the British, by which two of his sons were taken away as hostages. British painters always like painting since So 1792 में जब ये वॉर हुआ, 1792 में, उनके अलावा पहले भी हैदर अली के साथ उनकी कई भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 वॉर हुए, बैटल हुए, लेकिन उनमें कंपनी फोर्सेस जो है वो हार गए। अब 1792 में, लेकिन जब 1792 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कंबाइंड फोर्स के साथ सामना हुआ टीपू सुल्तान की फौज के सामने। अब टीपू सुल्तान को खाली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ था। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अगर हमको हराना है टीपू सुल्तान को तो हमें और फोर्स इकट्ठी करनी पड़ेगी, और इसीलिए उन्होंने मराठा और निज़ाम ऑफ हैदराबाद को अपने साथ मिला लिया और उनकी कंबाइंड फोर्स लेके वो टीपू सुल्तान के साथ लड़ने गए। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई मराठा एंड निज़ाम ऑफ हैदराबाद तो भारत के ही थे, तो फिर उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ क्यों दिया? तो भाई हमको भी पता है कि ग्रीड नाम की एक, ग्रीड मतलब लालच। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने उनको लालच दिया कि अगर हम मैसूर वॉर जीत गए तो हम लोग आपको कुछ प्रोविंस दे देंगे जिस पे आप अपना राज जमा सकते हो। तो विद दिस ग्रीड दे combined with the British East India Company and fought against the Tipu Sultan, and in which Tipu Sultan was defeated by, this is a third Mysore war, and in this Tipu Sultan was defeated some of his province or lost some of his province, and he has to sign some treaty by which he has to kept his 2 sons as hostages। मतलब यहाँ पे अब टीपू सुल्तान वो कंबाइंड फोर्स के सामने हार गया। अब इसके लिए उसको क्या करना पड़ा? इसको एक ट्रीटी साइन करना पड़ा। ट्रीटी मतलब एक जिसको हम बोलते हैं सौदा या बॉन्ड साइन करना पड़ा, और जिसके अंतर्गत उसको क्या करना था? उसके दो बच्चे थे, उसको हॉस्टेज मतलब गिर हम जिसको बोलते हैं गिरवे रखना पड़ा, ठीक है। और इसी तरह उसने अपने दोनों बच्चों और कुछ प्रोविंस को खो दिया। नाउ इन 1799 only in the last battle we called Anglo-Mysore, which was fought in 1799, and the battle of Seringapatam did the company ultimately win the victory। अब ब्रिटिशर्स का इरादा था कि उनको पूरा मैसूर कवर करना था, पूरा मैसूर उनको जीतना था, तो वो कंबाइंड फोर्स के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के सामने लड़ने गए। तो वहाँ पे क्या होता है कि टीपू सुल्तान जो है वो अपना जो द बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम है वो हार जाते हैं मतलब यहाँ पे किसकी जीत हुई? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है, और टीपू सुल्तान वॉज किल्ड एंड डिफेंडिंग हिज कैपिटल। सो टीपू सुल्तान जो है वो यहाँ पे
मर जाते हैं लड़ते लड़ते, और अपने कैपिटल जो है सेरिंगपट्टनम उसको बचाते बचाते वो मर जाते हैं। तो अल्टीमेटली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वहाँ पे क्या हो जाती है, विनिंग हो जाती है। तो मैसूर वॉज प्लेस अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वुडियार्ड्स एंड सब्सिडरी सिस्टम वॉज इम्पोज ऑन द स्टेट। अब यहाँ पे क्या होता है, तो मैसूर वॉज प्लेस अंडर द, मतलब अभी तक उसका रूलर कौन था, टीपू सुल्तान। अब ये वुडियार्ड्स कौन से, मैं आपको बताता हूँ। तो वुडियार्ड्स जो है, जो सबसे पहले मैसूर में क्या थे, मैसूर में सबसे पहले उनकी डायनेस्टी थी, मतलब वो राज करते, लेकिन उनको हराकर हैदर अली ने वहाँ पे अपना शासन जमा लिया। अब हैदर अली के बाद, हैदर अली जब मर जाता है तब उसके बाद उसका पुत्र मतलब उसका सन टीपू सुल्तान आता है। लेकिन अब टीपू सुल्तान वहाँ पे मर गया, तो ये क्या करते हैं कि उनको पता है कि वुडियार्ड्स, जो वुडियार्ड्स हैं वो ऐसे लोग हैं जो हमारा कहा मानेंगे। तो वो बैटल जीतने के बाद सेरिंगपट्टनम जो इलाका है मैसूर जो है वो वुडियार्ड्स को दे देते हैं कि आप लोग यहाँ शासन करो, ठीक है। लेकिन वो उन पे सब्सिडरी अलायंस सिस्टम डाल देते हैं, मतलब उन पे थोप देते हैं कि हम आप राज करो लेकिन हुकूमत हमारी चलेगी। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में क्या था हमने आगे पढ़ा है, हाँ, वी सो इन प्रीवियस पार्ट्स। सो वुडियार्ड्स को वहाँ शासित किया जाता है और वहाँ पे इमीडिएटली सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वॉज इम्पोज ऑन द स्टेट। नाउ लुक एट द इमेज। So this is a picture of big mechanical toy that Tipu possessed. You can see the tiger mauling the European soldier. When his handle was turned, a toy tiger roared and the soldier shriek. तो यहाँ पे जो इमेज दी गई है, ये इमेज में एक ऐसा एक मैकेनिकल टॉय, मतलब एक खिलौना है जो टीपू सुल्तान को दर्शाता है। ये टाइगर जो है वो टीपू सुल्तान को दर्शाता है, मतलब ये टीपू सुल्तान है। और यू कैन सी द टाइगर मॉलिंग ऑन यू, मतलब आप देखते हो कि टाइगर जो है वो ब्रिटिश सोल्जर के ऊपर चढ़ गया है और उसको खाने की कोशिश कर रहा है, उसको मारने की कोशिश कर रहा है। जब यहाँ मैकेनिकल यहाँ पे एक हैंडल दिया गया है, जब आप हैंडल को टर्न करते हो तो ये टॉय टाइगर जो है वो गर्जना करता है, आवाज़ करता है, और द सोल्जर वॉज श्रीक मतलब वो डर जाता है, वो अपने आप को बचाने लगता है। अभी ये टॉय जो है वो कहाँ पे रखा हुआ है, तो अभी ये टॉय जो है वो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम जो है लंदन में, वहाँ पे रखा गया है। तो ये टॉय के माध्यम से ये लोग ये जताना चाहते हैं कि टीपू सुल्तान जो है वो रियल में मैसूर के टाइगर थे, जिनको हराते हराते हमको क्या हो गया, पानी आ गया, मतलब हमको हमारा दम निकल गया था, जिसको हराना इतना आसान नहीं था। और इन्होंने ब्रिटिशर को इतना थका दिया था, ठीक है। तो ये जो है, ये जो टॉय है वो इस बात का प्रतीक है। सो दिस इज द पार्ट, द नेक्स्ट पार्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।